আহুই অষ্টমী একদম নতুন আমার কাছেও। আর এখানে অনেকজন এই ব্রত পালন করছে। আর আমি শুনেছি যে চাঁদ দেখে, যেমন করবা চৌথ ব্রত চাঁদ দেখে ব্রত উদযাপন করা হয়, কিন্তু এই প্রথমবার শুনলাম যে তারা দেখেও কিন্তু ব্রত উদযাপন করা হয়। আর এটার কাহিনী কারা করে সমস্ত কিছু আমি যখন জানার পর আমার ভীষণ ভালো লাগলো। ভাবলাম আমি যখন নতুন শুনছি, তো আমারও যেসব বন্ধুরা এখনো জানে না তাদের সাথে একটুখানি শেয়ার করি। তো আহুই ব্রত কারা পালন করে? যারা নিঃসন্তান, যেসব বিবাহিত মহিলারা এখনো সন্তান হয়নি, তারা কিন্তু সন্তানের জন্য এই ব্রত উদযাপন করে। আর যেসব মায়েরাও যারা এই ব্রত পালন করে, তারা সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করে, সন্তানের মঙ্গলের জন্য সুস্থতা, আয়ু সমস্ত কিছু কামনা করে কিন্তু এই ব্রত পালন করে। আমরা সাধারণত ষষ্ঠী পুজো করি, তো এখানটায় দেখছি যে এরা কিন্তু আহুই অষ্টমী পালন করে। আর এটা নর্থ ইন্ডিয়ার দিকে প্রচুর হয়। আজকের দিনে নাকি মানে নর্থ ইন্ডিয়ার দিকে, যেখানটায় মথুরা বৃন্দাবন আছে, তো ওখানটায় নাকি রাধাকুণ্ড আছে। সেই রাধাকুণ্ডে আজকের দিনে যাদের সন্তান হয়নি, নিঃসন্তান, তারা কিন্তু আজকের দিনে প্রত্যেকে ওখানে চান করে। আর সবথেকে বড় কথা, এখনও অবধি যেটুকু আমার শোনা কথা, যে এখনও অবধি যতজনই এই মানে সেখানটায় রাধাকুণ্ডে গিয়ে এই ব্রত উদযাপন করেছে এবং ওখানে চান করে এসেছে, তারা নাকি প্রত্যেকেরই সবাই সন্তান প্রাপ্ত হয়েছে। তো সেই জন্যই আমার কাছে ভালো লাগলো, ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিই। আর এটা পালন করা হয় কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে। তো যেমন আমরা মানে করবা চৌথ হয় চতুর্থীর দিনে, তারপরে যে অষ্টমীটা আসে, তারপরে কিন্তু এই ব্রত পালন করা হয়। আর এটাও কিন্তু ভীষণ মানে করবা চৌথের মতন খুবই কষ্ট করে ব্রত পালন করতে হয়। যেমন সারা দিন কিছু না খেয়ে, একদম নির্জলা, জল পর্যন্ত খায় না, একদম নির্জলা উপোস রেখে তারপরে কিন্তু সন্ধেবেলা যখন তারা বেরোয়, মানে একটা তারা হলেও চলবে, যখন তারা বেরোয় তারপরে তারা বেরোলে তারাকে দেখিয়ে তারপরে পুজো করে, আর মায়ের পুজো করে, অষ্টমী যে আহুই অষ্টমী মাতার পুজো করে, তারপরে বাচ্চাদেরকে খাইয়ে, প্রসাদ খাইয়ে, বাচ্চাদেরকে তিলক করে তারপরে কিন্তু এই ব্রত উদযাপন করা হয়। তো চলো কিছু কিছু আজকে অবশ্যই জানবো, তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে নেব। আর এই ব্রত পালন করা হবে 24শে অক্টোবর। তো হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো চলো শুরু করছি। আজকে মানে আহুই অষ্টমী ব্রত কথাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তবে হ্যাঁ, আমি ভাবছি আজকে হিন্দিতেই শেয়ার করব। তো চলো शुरू করছি ব্রত কথা। इस साल ये व्रत 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस व्रत में आहुति माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने संतान के लिए निर्जला व्रत करती है। शाम को तारों के छाँव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है। कोई जगह तारे निकलने के बाद आहुति माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद आहुति अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा करे। तो अभी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहूएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहूएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननंद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहूएं अपनी एकलती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वो मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याओ सही की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याओ माता ने ननंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुमसे कोई भी मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो।
सभी भाभीियों ने अपनी कोक बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोक ना बांधूंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोक बांध ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता था वो 7 दिन बाद मर जाता था। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, वो तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब जल्दी जागे तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास उसको ले के चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चे को रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग, क्या मांगती है। वो बोली 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आए। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई की कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहूएं हो। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। तब माता ने बोला जो तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहूएं मिलेगी, तू जाकर उजमान करना, 7 अवही बनाकर 7 कढ़ाई करना। वो घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहूएं बैठे हैं। बहुत खुशी से उसने 7 अवही बनाए और 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई किए। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कई छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मंड कर रही है, खूब उजमान हो रहे हैं। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आए और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वो बोली तुमने तो कोख बांधा ही नहीं, मैंने बांधवा लिया था। आप स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जैसे स्याऊ माता ने मुझे कृपा किया ऐसे सबको कृपा करे, निसंतान को संतान मिले और संतान की रक्षा करे। आज की ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय स्याऊ माता की जय।